We're live. We're live. We're live. We're live. Yes, we're live. Yes, we're live. Yes, we're live. Just give me 1 minute. Let me just check. Then break back and let me have quick realization if we are live. Yes, yes, we are live. We are live. We are live. Just give me 1 minute. Let me just check. Just give me 1 minute. Let me just check. Do share some emojis. I'm sharing across some. Break back and let me have quick realization. How are things, sir? We are on 8th of August. Another 1.5 week left for Yes, your we are live. exams. We are live. We are live. Just give me 1 minute. Let me just check. Just give me 1 minute. Let me just check. It might be replaying back end में. Now I hope things are better. 1 minute. Yes. Although my fourth live in a row, but I still need a bit of comfort back end में before going on to the live thing. हाँ जी सर, बताओ, how are we doing? How are things? कल का lecture I hope you saw, you revised securitization at your end. I'm hoping. In case you did not do it, this is the time. Please do it. Do not delay it more than this. आप जितना delay करोगे, there'll be an issue at your end, है ना? Which no one would obviously want. So let us. Now is the voice better? I feel now voice would be better. Let me check. Which no one would obviously want. So let us. Yeah. Up things are better. Hi. Hi. Good. Good. Good evening. Good evening. Yeah. ऐसे interaction में there's a lot of realness. So this should be there. This should be there. ठीक है? तो I'll just mute this. Yeah. ताकि हाँ. Now please put in the greetings, please. Great. Shall we start? बताओ. सर यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू टुडे? गिव मी 1 मिनट. मैं थोड़ा इसको मैं आज लेट मी जस्ट स्क्रिबल इसी में ही कर लेते हैं. कोई नहीं. इज स्क्रीन विजिबल? आई होप इट इज. यस इट इज. ठीक है सर. व्हाट इज द प्लान फॉर टुडे? CFA Quest. I hope you are well aware with the series. In case you are not aware, please do connect and understand what we are doing. This is a 1.5 week, 2 week effort wherein we come together live and we solve very very important questions, very very topical areas जिसकी baseline understanding is very important. These topics have a very high probability of the testability. Obviously no one knows क्या आएगा in the exam, है ना? We can obviously prepare for the best and this is how we can prepare. Ethics tends to be one of the weak points for many students. सबके लिए होता है. Why we are starting with ethics in the middle? Because fixed income के लिए I had received a special request, तो इसलिए I thought why not we start with fixed income पहले and then we can continue with ethics. Ethics का हम आज कौन सा स्टैंडर्ड कवर करेंगे सर? स्टैंडर्ड 7. स्टैंडर्ड 7 आप वहाँ पे थंबनेल में भी आपने देखा होगा. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड 7 ऑल अबाउट? स्टैंडर्ड 7 में दो स्टैंडर्ड आते हैं, A and B. The standard B is much more easy to understand क्योंकि it relates to us. Once we get that designation of a CFA charter holder, how do we use that designation? What are our duties towards the institute, है ना? It encapsulates everything of that sort. So that is much more easy to understand क्योंकि हमारी आप बीती ही है वो. Correct? That will be happening in the near future, है ना? So we should be very very aware of what things we should keep in mind, what we should do and what are the don'ts that we should keep in mind. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? हाउ विल बी द फ्लो? आई जस्ट लेट यू नो एक बारी. आई होप सो जो भी अपने क्लास स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वी हैव दीज नोट्स हैंडी विद अस, है ना? वी हैव दीज नोट्स हैंडी विद अस. इन नोट्स के अलावा यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड एनीथिंग. इन केस यू वांट टू, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, प्लीज डू. बट अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देयर इज नथिंग टू वरी. आपको करना क्या है? ये बस नोट्स को रीड थ्रू करना है ना? Everything has already been mentioned over here. What are all the important points? They've already been highlighted. Keywords have already been highlighted. आपको वो पढ़ना है, correct?
क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन टैबुलेटेड. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे आप गलत जा सकते हो, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन. जो भी ट्रिकी पॉइंट्स है फॉर क्वेश्चंस, हमने इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स वो क्वेश्चंस में टेस्ट करते हैं, उनको रिवर्स इंजीनियर करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिकल एरियाज आए थे, स्पेसिफिक एरियाज, हमने सर वहाँ के भी कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हैं. तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स कर लिए, बाई चांस क्वेश्चंस ना भी कर पाए, वैसे तो क्वेश्चंस आर एट अटमोस्ट प्रायोरिटी, बाई चांस आप क्वेश्चंस भी ना कर पाए, अगर आप बस ये भी रीड थ्रू कर लोगे, यू आर वेल सॉर्टेड. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो जो भी ट्रिकी एरियाज है, इस पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. दे विल बी सम ओवरलैप इन दी अबव स्टैंडर्ड ऑब्वियसली एंड दिस ट्रिकी पॉइंट्स, क्योंकि एट द एंड यही स्टैंडर्ड की तो ट्रिकी पॉइंट्स है, करेक्ट. एंड इसके बाद हम सर क्वेश्चंस कर लेंगे जो भी हमारे अपने क्वेस्ट के क्वेश्चंस है, अपने एमसीक्यू क्वेस्ट के जो भी हमारी एमसीक्यू बुकलेट है उसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे एंड वी आर डन. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़े. चलो, लेट अस जस्ट डू अ प्लेन रीडिंग. कुछ लर्न करना है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ लर्न नहीं करना है. जस्ट रीड थ्रू करना है, वट एवर सीप्स इन टू योर सबकॉन्शियस आराम से. दैट इज वॉट वी आर फोकसिंग. समझ में आया? क्योंकि वही रिटेन रहेगा. अगर आप कुछ बहुत ही ट्राई करोगे लर्न करने के लिए एट अ वेरी फोर्स्ड रेट, वो नहीं बैठेगा. जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स. जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिकी पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपको सारा का सारा एकदम से यू विल रियलाइज वो रिकैपिचुलेट हो रहा है. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. तो सर जो भी स्टैंडर्ड 7 है, स्टैंडर्ड 7B है, इट टॉक्स अबाउट द रेफरेंस टू, ओहो ग्रीन नहीं दिख रहा ना, रुको. Reference to the CFA Institute, CFA designation and the CFA program. Whenever we are talking about the institute, whenever we are talking about the CFA designation, yeah, whenever we are talking about the CFA program, what should be that back-end pointers in our mind before when we are talking about these three things? समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो इस स्टैंडर्ड में 3 चीज़ों की बात हो रही है. CFA डेजिग्नेशन की, करेक्ट. आप CFA डेजिग्नेशन कैसे यूज़ कर सकते हो? आप CFA इंस्टीट्यूट को कैसे यूज़ कर सकते हो? मतलब व्हेन यू आर एड्रेसिंग देम, हाउ डू यू एड्रेस देम? एंड व्हाट इज इट? द CFA प्रोग्राम. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द CFA प्रोग्राम. समझ में आया? आगे बढ़े, रीड थ्रू कर सकते हैं. बताओ, या तो कोई डाउट? सॉर्टेड है? चलो, लेट अस मूव अहेड एंड रीड थ्रू करते हैं. सबसे पहले, आई होप वी आर अवेयर ऑफ व्हाट दी स्टैंडर्ड्स आर, दीज कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आर. एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ एंड देन वो थोड़ा ना स्मूथ हो जाएगा. यस. We know what are these codes and standards. Sir, do we know what are these codes and standards? These codes and standards जो होते हैं, these codes and standards are the institute's ways of bringing in bylaws so that we are very very professional in our undertakings, so that जब भी हम act करते हैं, it is in a very trustworthy way. समझ में आया? क्योंकि ट्रस्ट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंटेंजिबल. व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर क्लाइंट्स, व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर एम्प्लॉयर्स, व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर सबऑर्डिनेट्स, व्हेन वी आर डीलिंग विद एनीवन इवन ऑन द फ्लोर, our behavior at the end should be one that exudes our trustworthiness. Trustworthiness again is very very intangible. तो हम कैसे दिखा सकते हैं? By following these things that the institute outlines. समझ में आया? This is the core thing behind any of the code या standard that the institute has instituted. रीड तो करें. चलो सर, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? सबसे पहले उनका मेन फोकस इज M/C, मतलब मेंबर स्लैश कैंडिडेट. जो भी मेंबर स्लैश कैंडिडेट होता है, he must not misrepresent or exaggerate what the CFA Institute membership, the CFA charter or the CFA candidacy means. हर चीज़ को हम पढ़ेंगे. what do you mean by the CFA Institute membership, the CFA charter and the CFA candidacy? मतलब when will you be called a CFA candidate, हम वो पढ़ेंगे. when will you be called a CFA Institute का member, हम वो भी पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर हमने level 1, level 2, level 3 क्लियर कर दिए तो we are automatically a member. No, we are not automatically a member. We have to fill in certain more details. We have to fulfill certain more points after which we will be able to be called a member of the institute. समझ में आया? We cannot give promises of superior performance or guaranteed success can be tied to it. कि सर आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल हमने एक ब्रोकरेज फर्म खोली अशोका एडवाइजर्स के नाम से, करेक्ट.
एंड हम यहाँ पे क्लाइंट्स को क्या बोल रहे हैं सर, क्लाइंट्स को यहाँ पे लेयर कर रहे हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट कि आप यहाँ पे आओगे तो हम सारे यहाँ पे CFA चार्टर होल्डर्स हैं, करेक्ट, हमारे पास सारे CFA चार्टर होल्डर्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जो CFA परस्यू कर रहे हैं, तो आपको अच्छा ही रिटर्न देंगे, हम आपको 10% गारंटीड रिटर्न देंगे सर, गारंटीड, गारंटीड। अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो भी समझ में आया। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिल वेन एवर यू आर मेकिंग स्टेटमेंट्स और वेन यू आर डीलिंग विद योर इंस्टीट्यूट, वेन यू आर डीलिंग विद द एम्प्लॉयर, वेन यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स, इसलिए ये स्टैंडर्ड आया है, समझ में आया। When can we say that you are a CFA Institute member? When can we say that you are a CFA Institute member? And when can we say that you are a candidate? समझ में आया? क्या norms होते हैं for a candidacy and what are the norms for you to be called a CFA Institute member? ये पढ़ेंगे। एंड जब एक बार हमने पढ़ लिया है तो आप इसको ना ही मिस रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना ही आप इसको एग्जैजरेट कर सकते हो। जो फैक्ट्स है आप सिर्फ फैक्ट्स ही आगे दे सकते हो, समझ में आया। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? तो व्हेन विल यू बी कॉल्ड अ मेंबर, सबसे पहले यू फुलफिल या यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो क्या है? सबसे पहले आपने 3 लेवल्स क्लियर करे। सर हमें तो लग रहा था 3 लेवल्स क्लियर कर लेंगे एंड हम मेंबर बन जाएंगे, नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप है। आपने अभी सिर्फ पहली सीढ़ी ही पार करी है ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बाय क्लियरिंग ऑल द 3 लेवल्स। उसके बाद आपका 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वंस योर 4000 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस इज डन, देन यू आर सेट टू फुलफिल द सेकेंड स्टेप ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद क्या होता है? टू मेंटेन योर एक्टिव मेंबरशिप, 2 और चीजें आपको साइन करनी पड़ेगी। एक, यू हैव टू सबमिट योर PCP, योर प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड आपका सर यू हैव टू पे एनुअल फीस, समझ में आया। तो व्हेन विल यू बी कॉल्ड अ मेंबर? व्हेन यू फुलफिल 4 कंडीशंस। एक, आपने सर अपने तीनों के तीनों लेवल्स क्लियर करे हैं, आपके 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्स है, आपने PCP साइन किया हुआ है, प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट, जो प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम होता है उनका एक स्टेटमेंट होता है, वो आपने साइन किया है, एंड लास्टली आपने एनुअल फीस पे करी है, करेक्ट। if you lapse you cannot use the CFA designation but you can mention about the time you were। जब आप पहले थे आप तब मेंशन कर सकते हो, बट अब आप करंटली यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सम और दी अदर कंडीशन यू हैव नॉट फुलफिल्ड, समझ में आया। क्या तो कोई डाउट? तो व्हाट आर द प्री कंडीशंस? व्हेन कैन यू बी कॉल्ड अ CFA इंस्टीट्यूट का मेंबर? when can you be called a CFA institute का member? when you fulfill 4 criterias, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 में क्या आता है सर? सबसे पहले यू हैव क्लियर्ड all 3 levels, करेक्ट। अगर आपने ये क्लियर किया है, वेल एंड गुड, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है कंप्लीट। सेकंड, यू हैव कंप्लीटेड 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्स मतलब सर आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में देर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स और वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप ऑडिट में काम कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हो, एनीथिंग रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप काम कर रहे हो, आप वो दिखा सकते हो टू द इंस्टीट्यूट। अगर 4000 आवर्स कंप्लीटेड है देन यू आर सेट टू बी डन विद द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है सर? यू शुड साइन योर PCP मतलब सर जो भी आपका प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम होता है, प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम का स्टेटमेंट। एक ये स्टेटमेंट आता है प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोग्राम का स्टेटमेंट। क्या होता है सर? इसमें आप बताओगे कि यू हैव बिहेव प्रोफेशनली एट एनी पॉइंट इन टाइम, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड ब्राइब, आपका कहीं भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं रहा, करेक्ट। एंड लास्टली अगर आपने ये कर लिया तो आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया। एंड लास्टली आपको क्या करना है? यू हैव टू पे योर एनुअल फीस, समझ में आया। अगर आपने ये तीनों कंप्लीट कर लिए, ओनली देन यू कैन बी कॉल्ड अ CFA इंस्टीट्यूट का मेंबर। CFA इंस्टीट्यूट का एक्टिव मेंबर, समझ में आया। यहाँ तो कोई डाउट? लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था नोट्स में? लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? से फॉर एग्जांपल सर 2018 में आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली थी, बट 2019 में आपने एनुअल फीस आपने पे नहीं करी। बाय चांस आपने नहीं पे करी तो आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर। आप ये बोल सकते कि आई वॉज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर इन 2018। You can give reference to the time when you were the member, when you had fulfilled all these criterias, of clearing the 3 levels, your 4000 hours of work, signing your PCP statement and paying your annual fees.
समझ में आया? एक और बार रीड थ्रू करोगे आपको समझ में आ जाएगा. इफ यू लैप्स यू कैन नॉट यूज द CFA डेजिग्नेशन बट यू कैन मेंशन अबाउट द टाइम व्हेन यू वर. जब आपने ये चारों कंडीशंस फुलफिल करी थी यू कैन टॉक अबाउट दैट पॉइंट इन टाइम. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़े. अब what is the criteria to use the CFA designation? What is the criteria to use the CFA designation? ये ग्रीन दिख नहीं रहा ना आपको? What is the criteria to use the CFA designation? जब हम CFA designation use करते हैं कैसे use कर सकते हैं? What should we keep in our mind? सबसे पहले you cannot use CFA if membership lapses. जो भी ये हमने अभी पढ़ा है अबाउट द मेंबरशिप, ये आप CFA नहीं यूज कर सकते हो कि आई एम CFA गौतम अगर आपने फुलफिल नहीं करे हैं ये कंडीशंस. समझ में आया? अगर आपने फुलफिल नहीं करे कंडीशंस यू कैन नॉट यूज दिस. उसके बाद आ जाता है यू मे स्टेट यू वर अ मेंबर इन द पास्ट. जैसे मैंने बताया आपको 2018 में आप मेंबर थे, यू कैन स्टेट दिस. बट इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ दिस कंडीशंस प्रेजेंटली तो यू कैन नॉट मिस रिप्रेजेंट योरसेल्फ. समझ में आया? यू कैन नॉट अटैच द CFA डेजिग्नेशन टू योर सूडोनेम और योर पेन नेम ऑन सोशल मीडिया. सर आजकल सोशल मीडिया पे अ लॉट ऑफ यूजर्स सोशल मीडिया पे पीपल यूज अ लॉट ऑफ देयर पेन नेम्स मतलब जो भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होता है, सोशल मीडिया हैंडल. करेक्ट सर? सोशल मीडिया हैंडल्स पे कोई भी आपका पेन नेम या सूडोनेम में आप ये CFA अटैच नहीं कर सकते हो. समझ में आया? क्या तो कोई डाउट? हो सकता है सर यहाँ पे है मिस्टर आरव का एक ब्लॉग होता है जहाँ पे वो इज अ राइटर. करेक्ट? तो इसका नाम है राइटर आरव. अब सर ये राइटर आरव है, अगर आरव इज अ CFA डेजिग्नेशन होल्डर, इफ ही हैज द CFA मेंबरशिप विच इज एक्टिव, तो ये CFA आरव यूज कर सकता है या आरव CFA यूज कर सकता है. बट ये नहीं बोल सकता राइटर आरव CFA ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़ सकते हैं. आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट नेम्स ऑफ देयर अकाउंट, तो वो उस अकाउंट के नेम पे यूज नहीं कर सकते. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. उसके बाद क्या बोलते हैं सर, जो आपका ये CFA 3 लेटर्स है ना, दिस इज अ ट्रेडमार्क. यू कैन नॉट यूज इट एज अ नाउन दैट आई एम अ CFA. नहीं, इट इज एन एडजेक्टिव. यू आर अ CFA व्हाट? यू आर अ CFA चार्टर होल्डर. समझ में आया? यू कैन यूज इट एज अ एडजेक्टिव दैट आई एम अ CFA चार्टर होल्डर. आप उसको एज अ नाउन नहीं यूज कर सकते आई एम अ CFA. नहीं, आई एम अ CFA चार्टर होल्डर. ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े. You cannot use CFA as part of your firm name. You cannot use CFA as part of your firm name. Usually ये CAs में काफ़ी होता है कि जैसे CA गौतम एंड एसोसिएट्स हम लिख सकते हैं, गौतम एंड एसोसिएट्स. करेक्ट सर? ये एक CA फर्म है. ये एक CA फर्म है जो टैक्स फाइलिंग्स करती है, GST फाइलिंग्स करती है, ऑडिट्स करती है, तो इट कैन यूज CA गौतम एंड एसोसिएट से नाम यूज कर सकते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ CFA सर आप ये एज पार्ट ऑफ योर फर्म नेम कभी यूज नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सर ये जो फर्म है इसके पास कोई डिग्री नहीं है. समझ में आया? एंड फर्म्स और नॉन लिविंग पीपल आर नॉट गिवन द डिग्री. दिस डिग्री ऑफ योर CFA इज ओनली गिवन व्हेन यू फुलफिल द 4 कंडीशंस. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. बताओ. शैल वी मूव अहेड. अब सर आता है व्हेन विल यू बी कॉल्ड अ CFA इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये स्टैंडर्ड स्टार्ट कैसे हुआ था कि मेंबर/कैंडिडेट. आपने सर मेंबर के बारे में पढ़ लिया. करेक्ट? अब हम सर कैंडिडेचर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन विल वी बी कॉल्ड अ CFA कैंडिडेट. व्हेन विल वी बी कॉल्ड अ CFA कैंडिडेट. समझ में आया? व्हेन विल वी बी कॉल्ड अ CFA कैंडिडेट, CFA इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट, अगर हमने फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करी. You are only a candidate if these are 3 conditions. अगर कोई इनमें से आप conditions में fall कर रहे हो, only then you are a candidate. Your application is accepted by the CFA Institute. आपने सर application file करी है और उन्होंने accept कर दी है, तो you become a candidate. Second, you are enrolled for the exam. आपका सर हो सकता है level 1, level 2 या level 3 upcoming है, तो you are enrolled for an exam, then you can be called as a CFA Institute का candidate. Or the third thing, you gave an exam and you are awaiting your results. You gave your exam and now you are awaiting your results. ये अच्छा रिजल्ट आएगा. Then you are set to be a candidate. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. सर हमारा नवंबर का एग्जाम था, आज अगस्त है. करेक्ट? ये नवंबर 18 को
नवंबर 18 2026 को आपका लेवल 1 का एग्जाम है, ठीक है, आपका लेवल 1 का एग्जाम है, आपने फॉर सम रीजन आपने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, आपने एग्जाम नहीं दिया। अब नेक्स्ट विंडो कौन सी होगी सर, आप फेब 2027 में बैठ सकते हो, करेक्ट। आपने सर फेब 2027 के लिए भी रजिस्टर अभी नहीं किया है, आपने अभी रजिस्टर नहीं किया है फॉर फेब 2027, तो कैन यू बी सेड टू बी अ कैंडिडेट फॉर दिस इंटरवीनिंग पीरियड? Can you be said for can you be called a candidate for this intervening period? No, the institute is very clear on this. देखो, if you skip an exam you are a candidate only once you have re-enrolled. एक बार आपने रजिस्टर कर लिया है, only then. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, you are not a candidate. Only after registering only after registering can you be said to be a candidate. अगर आपने डेफर किया है, डेफर इज पार्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने डेफर किया है, yes you are a candidate, you remain to be a candidate. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? बताओ, these are some tricky points that the institute might ask. बताओ, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 2 पॉइंट आगे, you must not, ये must is a very important word, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही बोला you must not claim a partial designation for passing 1 or 2 levels. आप ये नहीं बोल सकते हो कि I am Arav level 1. Arav level 1 is no designation. समझ में आया? आप बोल सकते हो you are Arav a level 2 candidate. Only a level 2 candidate अगर आप सर उन 3 कंडीशंस में आपने फॉलो किया है, आप तो उन 3 कंडीशंस में फॉलो कर रहे हो कि you have enrolled for an examination, आपने एग्जामिनेशन दे दिया and you are awaiting your results, और you have filed an application and you are awaiting the acceptance by the CFA institute. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो आप सर लेवल 1 कैंडिडेट लिख सकते हो, लेवल 2 कैंडिडेट लिख सकते हो, बट ये नहीं लिख सकते हो कि आरव लेवल 1 या आरव लेवल 2 या आरव लेवल 3. सर दीज आर ऑल पार्शियल डेजिग्नेशंस, एंड पार्शियल डेजिग्नेशंस आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. उसमें लिखा हुआ है सर मस्ट नॉट. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं, बताओ. शैल वी मूव अहेड? और at the same time you cannot state an expected date of completion. जैसे आपका भी एग्जाम है सर इन नवंबर 2026 में आपका लेवल 1 है, आपने सोचा नवंबर 2026 में मैं क्लियर कर लूँगा, फिर जो मेरा मई वाला एग्जाम होगा मई 27 में मैं लेवल 2 दे दूंगा, एंड सर जो मेरा नेक्स्ट ईयर फेब आएगा, जो मेरा फेब वाला अटेम्प्ट होगा ऑफ लेवल 3 2028, मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगा अपना लेवल 3 2028, तो मैं यहाँ पे मैं CFA के 3 लेवल्स क्लियर कर लूँगा. तो आप यहाँ पे खड़े खड़े आपने क्या बोला है, will become a CFA in 2028. क्या आप ये लिख सकते हो? नॉट एट ऑल, आप नहीं लिख सकते हो. क्यों? यू कैन नॉट गिव एन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यू कैन ओनली शेयर फैक्ट्स. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? द इंस्टीट्यूट इज वेरी स्ट्रिक्ट when it comes to something known as facts and when something is coming to be known as opinions. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? फैक्ट्स और ओपिनियंस को डिफरेंशिएट करना सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इंस्टीट्यूट इज हेल बेंट बियॉन्ड दिस. आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? बस. अब इसके बाद क्या बोलता है वो, यू कैन स्टेट factual achievements, you can state factual achievements like passed all the 3 levels consecutively, but you cannot imply superior ability like I passed 3 years ago so I am better than others. समझ में आया? आप ये बोल सकते हो कि I completed all my levels consecutively. आप ये नहीं बोल सकते first attempt with the highest percentile. नहीं, आप you cannot at any point in time imply superior performance because of your CFA designation. In short, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, you can be factual but आप promote नहीं कर सकते हो अपने आप को. समझ में आया? आप प्रमोट नहीं कर सकते हो कि आप सर हमारे पास आओ, हम आपको रिटर्न्स देंगे, गारंटी रिटर्न्स देंगे, बहुत बढ़िया रिटर्न्स देंगे. क्यों? क्योंकि सर वी हैव अ टीम ऑफ लाइक माइंडेड प्रोफेशनल CFA चार्टर होल्डर जिन्होंने तीनों के तीनों लेवल सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. दीज आर द शाइनिंग स्टार्स. ऐसे कुछ नहीं बोल सकते. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई वेरी? आगे बढ़ सकते हैं. देयर कैन बी नो प्रमोशन ऑफ एनी सॉर्ट व्हेन यू आर डीलिंग विद द CFA इंस्टीट्यूट. अब सर 2 की पॉइंट्स आते हैं जो इंस्टीट्यूट ने लिखे हुए हैं फर्म अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के ऊपर एंड यूज ऑफ अप्रूव्ड टेम्पलेट्स. इसमें क्या बोलते हैं, द मेंबर स्लैश कैंडिडेट शुड एडुकेट देयर फर्म स्टाफ स्पेशली द लीगल कंप्लायंस PR मतलब पब्लिक रिलेशंस एंड द मार्केटिंग टीम्स ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द CFA डेजिग्नेशन एंड कैंडिडेसी स्टेटस. सर दिस तो वी आर स्टडिंग एज अ कैंडिडेट
करेक्ट, बट एक बार यू आर इन द वर्क फोर्स, यू आर वर्किंग, तो यू माइट टेंड टू फॉरगेट समथिंग लाइक दिस. तो जो इंस्टीट्यूट का मेंबर या कैंडिडेट हु इज लीडिंग द फर्म, सर दे शुड टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, दे शुड टेक ऑल प्रिकॉशनरी एफर्ट्स टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग विद द कैंडिडेट, कि उनको पता होना चाहिए कि व्हेन कैन यू यूज द CFA डेजिग्नेशन. समझ में आया? अभी तो फॉर द एग्जाम यू स्टडिंग, बट वंस यू जॉइन द वर्क फोर्स देन ऑल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. एंड हाउ विल यू बी अवेयर? व्हेन देयर आर कांस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दिस. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. चलो सर, इसके बाद आ जाता है आपका use of approved templates. The firms should develop standardized pre-approved templates for resumes, websites and marketing materials to ensure consistent and correct references to the CFA Institute, CFA designation and CFA candidacy. सर अब ये एक ही चीज़ सर रिगार्डिंग द CFA Institute, द डेजिग्नेशन एंड प्रोग्राम, ये सबको बार बार ट्रेनिंग कर करा के अपना भी टाइम लगाएंगे. जो कैंडिडेट आया है टू जॉइन द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सर वहाँ पे भी उसका भी काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर एक ना आप एक प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट ही ले लो. क्या ले लो? आप एक प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट ले लो. अगर आपने कभी भी रिज्यूमे बनाना है ना अपना, आपने अगर कभी भी अपना रिज्यूमे बनाना है, तो अगर आरव ने अपना रिज्यूमे बनाना है तो आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है यहाँ पे रिगार्डिंग द CFA इंस्टीट्यूट, CFA डेजिग्नेशन या द CFA कैंडिडेसी. क्या सर? जो भी रिगार्डिंग योर CFA डेजिग्नेशन, करेक्ट, जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग व्हेन यू आर एड्रेसिंग द CFA इंस्टीट्यूट, करेक्ट, या रिगार्डिंग योर CFA कैंडिडेसी, करेक्ट, ये सर आप हर चीज़ इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दो. उसको प्री अप्रूव टेम्पलेट ही वैसे बना दो, तो ना जब भी यूज़ करेगा, आरव यूज़ करेगा या कोई और यूज़ करेगा हु हैज़ जॉइंड द वर्कफोर्स, तो उसको पता होगा कि हाउ टू यूज़ द टेम्पलेट, सो दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम वी आर ऑलवेज फैक्चुअल, इन एनी वेज वी आर नॉट प्रमोशनल. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़ सकते हैं. करेक्ट, वी कैन नॉट बी प्रमोशनल एट ऑल. आगे बढ़े. यहाँ तो कोई डाउट? अब आता है सर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको दिखेंगे. अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज ट्रिकी पॉइंट्स ओनली. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस सर उनका जो मेन सब हेडिंग है वो दिमाग में रखना है और उसके बेसिस पे पॉइंट फ्लो हो जाएगा. तो लर्न कुछ नहीं करना है, बस रीड थ्रू करना है एंड आगे बढ़ना है. एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मतलब द CFA डेजिग्नेशन मस्ट बी यूज्ड ओनली बाय एक्टिव चार्टर होल्डर्स. मैंने आपको बताया था जिसने सर चारों की चार कंडीशंस फुलफिल करी है, ओनली ही इज नोन टू बी एन एक्टिव मेंबर. तो सिर्फ वो ही CFA की डेजिग्नेशन यूज कर सकता है. Those who have paid dues, submitted the professional conduct statement and remain members of the CFA Institute and a local society. जैसे इंडिया में we have the CFA Mumbai Society, correct? If you are a member of the CFA Mumbai Society and the CFA Institute, तब आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, provided जो भी वो 4 conditions थी. वो 4 कंडीशंस कौन सी थी सर? फर्स्ट, आपने तीनों के तीनों लेवल्स क्लियर कर देनी चाहिए. सेकंड सर, आपने 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस किया होगा. थर्ड, आपने सर PCP पे लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब, यू हैव बिहेव्ड इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया वेर यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ योर एथिकल डिलेमा, यू हैव ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूट. जो भी है, यू आर वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स, विद द इंस्टीट्यूट, विद योर एम्प्लॉयर. एंड लास्टली जो फोर्थ क्या था कि आप अपना एनुअल ड्यूज पे कर रहे हो, जो भी आपकी एनुअल फीस है आपने वो भी पे कर लिया. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? फिर आता है नो परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस. आप कहीं पे भी कुछ इम्प्लाई नहीं कर सकते हो बाय सुपीरियर परफॉर्मेंस की. सर हमने CFA किया है, आप हमारे पास आओ और किसी के पास मत जाओ, हमारे पास ही आना, हम आपको बढ़िया रिटर्न्स देंगे. करेक्ट? क्यों? क्योंकि सर दिस इंडस्ट्री वेयर यू आर बिल्डिंग वेल्थ, वेयर यू आर मेकिंग मनी फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर अदर्स, इट इज़ वेरी वॉलेटाइल व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट. Your only weaponry, your only armory is your trust that you can hold of your client. समझ में आया? जो भी आप रिटर्न्स कमा के दे रहे हो उनको, जो भी आप एसेट्स बिल्ड करके दे रहे हो उनको, इट इज ऑल बेसिस समथिंग नोन एज ट्रस्ट. अगर आपके बिहेवियर में, आपके सेंटेंसेस में जो आप बोलते हो कहीं पे भी ट्रस्ट इज लैकिंग, तो सर वहां पे द इंस्टीट्यूट पुट्स अ रेड फ्लैग और बोलते हैं ये प्लीज मत करना. तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी एग्जॉस्टिव, इसके बियॉन्ड भी हो सकता है. समझ में आया? तो द मेंबर और कैंडिडेट मस्ट नॉट इम्प्लाई दैट होल्डिंग और परसुइंग द CFA डेजिग्नेशन गारंटीज सुपीरियर परफॉर्मेंस. ये कोई गारंटी नहीं है कि यू विल गेट सुपीरियर परफॉर्मेंस, स्किल और सम इन्वेस्टमेंट सक्सेस. समझ में आया? या तो विदाउट, यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स. समझ में आया? यूज ऑफ कैंडिडेसी कैसे करेंगे? रुको मैं उसको सेम कलर से ये हाईलाइट करता हूँ. यूज ऑफ कैंडिडेसी का क्या मतलब है? यूज ऑफ कैंडिडेसी मतलब द टर्म CFA कैंडिडेट मे ओनली बी यूज्ड बाय दोज हु आर करंटली रजिस्टर्ड फॉर एन अपकमिंग CFA एग्जाम. तो इफ यू आर
appearing for an upcoming CFA exam, only then use the word CFA candidate level 1, level 2, level 3 जो भी, ठीक है. Once the exam window has passed, the candidate must not use the term until he has re-registered. समझ में आया? एक बारी विंडो पास हो गई है, आपने एग्जाम नहीं दिया तो यू आर नॉट अ कैंडिडेट एनी मोर. समझ में आया? हाउएवर अगर आपने एग्जाम दे दिया एंड यू आर अवेटिंग रिजल्ट, तब तो आप कैंडिडेट हो ना. ये लो, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यू गेव दी एग्जाम एंड यू आर अवेटिंग योर रिजल्ट्स, तब तो आप कैंडिडेट हो, तब आप कैंडिडेट लिख सकते हो. बट एग्जाम विंडो चली गई, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो यू आर नॉट अ कैंडिडेट अंटिल एंड अनलेस यू हैव री रजिस्टर्ड. अगर आपने री रजिस्टर कर लिया, यू आर अ कैंडिडेट, आप लिख सकते हो लिंक्डइन पे या कोई भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? फिर आता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग. आप जब भी CFA लिख रहे हो, इट शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर एंड रिस्पेक्टफुल फॉर्मेट. कैसे, अभी बताते हैं. The CFA designation should be written after the individual's name separated by a comma. तो वेरी वेरी स्पेसिफिकली एक बारी सर आरव लिख दिया है, आरव कॉमा CFA लिख सकता है. समझ में आया? आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन वो आएगा. एग्जाम्पल, जॉन स्मिथ CFA एंड नेवर एज पार्ट ऑफ अ कंपनी नेम, प्रोडक्ट और अ टाइटल. मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसे नहीं हो सकता है कि गौतम एंड एसोसिएट्स CFA लिख सकते हैं या CFA गौतम एंड एसोसिएट्स लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते. समझ में आया? एग्जाम्पल, CFA नॉट अ CFA एनालिस्ट, जॉन स्मिथ लेवल CFA लेवल 3. ये CFA लेवल 3 क्या है? दिस इज पार्ट डेजिग्नेशन, दिस इज पार्शियल डेजिग्नेशन, पार्शियल डेजिग्नेशन. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. बस 2-3 पॉइंट्स और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एंड वी आर डन. मेंबरशिप रिटायरमेंट एंड सस्पेंशन. मेंबरशिप रिटायरमेंट एंड सस्पेंशन. Members whose membership is suspended or lapsed due to some unpaid dues or missing conduct statement cannot use the CFA designation. फिर से वही कह रहे हैं, अगर सर उन 4 में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई है, यू आर नॉट एन एक्टिव मेंबर, यू आर नॉट एन एक्टिव मेंबर, तो आप CFA की डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते. समझ में आया? इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें दी है. अगर सर आपने अनपेड ड्यूज है आपके, या आपने PCP जो स्टेटमेंट होती है वो साइन नहीं करी, तो यू आर नॉट अ मेंबर, क्योंकि आपके वो पूरे के पूरे 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हुए हैं. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. ऑनलाइन और पब्लिक रेफरेंसेस. ऑनलाइन और पब्लिक रेफरेंसेस में क्या बोलते हैं? द चार्टर होल्डर्स मस्ट यूज देयर फुल नेम अलोंग विद द डेजिग्नेशन इन रिसर्च रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट. यूजिंग मिसलीडिंग और प्रमोशनल वेरिएशंस लाइक एक्सपर्ट CFA वायलेट्स द स्टैंडर्ड. क्योंकि यहाँ पे भी यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई सुपीरियर परफॉर्मेंस, यू आर ट्राइंग टू बी प्रमोशनल एंड यू कैन एट एनी पॉइंट इन टाइम नॉट बी प्रमोशनल. समझ में आया? तो एवरीथिंग स्टेम्स आउट, इसका जो सारा का सारा बेस या फाउंडेशन है इज दिस स्टैंडर्ड ओनली. अब यहाँ तक भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. क्यों? क्योंकि दीज हैव बीन मेड बाय द क्वेश्चंस को री इंजीनियर करके, ये एफर्ट लगा है. तो इसको एक बार प्लीज रीड थ्रू कर लेना. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. तो लीव एनीथिंग बट प्लीज डू नॉट लीव दिस. इन केस एनीवन इज वॉचिंग, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट रख लेना, अपने पास लेना, रीड थ्रू कर लेना. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये सर फॉर ऑल द स्टैंडर्ड्स आप कर लोगे, यू आर डन. अगर आपने ये सारे स्टैंडर्ड्स के लिए कर लिए, जैसे वो 7A वो 7B था जो हमने अभी जस्ट किया, ये 7 के लिए पढ़ लेना. करेक्ट? ये सारे के सारे ट्रिकी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे. आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ तक कोई डाउट? बस अब हम क्या करेंगे, बस क्वेश्चंस करेंगे एंड वी आर डन फॉर द डे. आगे बढ़े. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? कलर कौन सा ले? ऑरेंज कलर लेते हैं. स्टार्ट करें, बताओ. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? डन. क्वेश्चन 1. Orient Investment advertises that all its senior partners are CFA charter holders and that each passed all 3 exams on the first attempt. उन्होंने बताया, फैक्ट्स बताया कि अभी सबने क्लियर किया है on their first attempt. The advertisement claims that this is the reason their mutual funds, this जो उनके एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है, it claims that this is the reason that their mutual funds consistently outperformed the market. Which standard is most likely violated? क्या आप imply कर रहे हो superior performance? बिल्कुल आप imply कर रहे हो. There is no violation occurs if the statement is factually correct. Sir, first part factually correct था. Second में you were trying to be promotional to give out details that we are performing superiorly only because of this. The firm violated the standards by implying superior performance is tied to your CFA exam results. हमने first attempt में clear किया है. That is why we are able to yield better results. A violation occurs only if some partners did it and did not pass it on the first attempt. ये तो सर कोई भी random option दे रहे हैं. समझ में आया? Therefore आंसर विल बी ऑप्शन बी. आगे बढ़े. यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई क्वेरी? सर हमने क्या किया है, एक और एफर्ट लगा है. इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, बट उनका जो मेन क्रक्स है क्वेश्चन का, वो पूछना क्या चाहता है,
हमने सर इसको और सिंथेसाइज कर दी कि ये 3-4 लाइन्स का अगर आपने क्वेश्चन, ये मल्टीपल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, दिस इज व्हाट दे आर वांटिंग टू आस्क यू। वो सर इसी क्वेश्चन को या इसी डेटा को वो और बढ़ा सकता है और एक्सपैंड कर सकता है। ये 3 लाइन्स का है, ये 4, 5, 10, 20 लाइनर्स का बना सकता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बट सर जो उसका सार है, जो उसका फाउंडेशन है, ये यही 3-4 लाइन्स है। समझ में आए? तो प्लीज मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? आफ्टर लीविंग द वर्कफोर्स टू ट्रैवल, मार्क डुपॉन्ट stops paying the CFA Institute dues and does not submit his annual professional conduct statement. ठीक है. When he resumes work as an independent analyst, he prints business cards listing CFA after his name without reinstating his membership. तो वो CFA designation use तो कर रहा है, but अभी ही उसने reinstate नहीं करी हुई अपनी membership. Which standard is violated? Standard 7B, because he cannot use the designation without active membership. No violation since he earned the charter previously and he still holder, मतलब उसने पहले उसने कमा ली थी ना, he earned the charter holder पहले, तो वो अभी भी यूज कर सकता है। क्या वो अभी भी यूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। Until and unless he is an active member, until and unless he is an active member, और एक्टिव मेंबरशिप के लिए सर 4 कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर आपकी 4 कंडीशंस फुलफिल है, आप तभी CFA चार्टर होल्डर की जो डेजिग्नेशन है CFA, आप तब यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो कोई डाउट? स्टैंडर्ड 1C, बिकॉज ही मिस रिप्रेजेंटेड हिज इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। कहीं पे भी सर उसने इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की बात करी, उसने इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं करी। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखियो, अब एक बार आपने नोट्स पढ़ लिया, वो ट्रिकी पॉइंट्स पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चंस विल फ्लो, अगर आपने वो ट्रिकी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चन 3, आफ्टर रिटायरिंग पेट्रिशिया Moreno stops paying dues and does not submit her professional conduct statement. She continues to list CFA on her personal business cards. Which action would bring her back into compliance? तो we know she is in non-compliance. क्यों? क्योंकि सर 4 की 4 conditions fulfilled नहीं है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लियर है, वेल एंड गुड। क्या सर आपका 4000 आवर्स कंप्लीटेड है? वेल एंड गुड। आपने क्या PCP दिया हुआ है? अगर नहीं दिया हुआ है, दैट इज अ पॉइंट। एंड अगर आपने एनुअल फीस पे करी है, वेल एंड गुड। नहीं पे किया तो दैट इज अनदर पॉइंट। समझ में आया? तो लास्ट के 2 पॉइंट्स आर प्रॉब्लमैटिक, करेक्ट? तो हाउ कैन शी कम बैक इनटू कंप्लायंस? बाय डूइंग नथिंग सिंस शी अर्न द CFA डेजिग्नेशन ड्यूरिंग हर करियर। तो सर एक बार ही मिल चुका है, बस कभी भी यूज करो? नहीं सर, इट इज अ ट्रेडमार्क मतलब आपको सर रेंट आउट करना पड़ेगा इसको, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आया? अप्लाइंग फॉर रिटायर्ड स्टेटस आफ्टर CFA इंस्टीट्यूट एंड पेइंग द रिड्यूस्ड फीस, और सिंपली अवॉइडिंग एनी प्रोफेशनल यूज ऑफ हर बिजनेस कार्ड्स। आप बताओ सर, how can she use if she wants to come back into compliance and use the CFA का designation? Easily सर, आप जाओ एंड जो भी कंप्लायंस है विद द CFA इंस्टीट्यूट आप वो फुलफिल कर लो। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको फाइल करना पड़ेगा अंडर द रिटायर्ड स्टेटस एंड आप कम फीस दे देना। ठीक है, हम कम फीस दे देंगे, हमें तो बेनिफिट ही है सर। एक तो कम फीस भी पे करेंगे एंड सर हम CFA की डेजिग्नेशन भी यूज कर पाएंगे। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर आता है क्वेश्चन 4। सर 2-3 क्वेश्चन और एंड देन वी आर डन विद दिस स्टैंडर्ड इन एंटायरिटी। इसके बियॉन्ड इसमें कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड में। आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? बताओ, शैल वी मूव अहेड? चलो। Helen Park tells a colleague that the CFA program greatly improved my knowledge of finance and many firms require the charter for senior analyst positions. Does Park's statement comply with the standards? सर उसने बताया कि by pursuing the CFA इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम था, it improved her knowledge of finance. पहले उसको फाइनेंस नहीं आता था, अब उसको आता है, and many firms require the charter for senior analyst positions. Did he comply with the statement or did he violate? Did he comply or did he violate? Yes, he complied because she stated verifiable facts without exaggerating her performance benefits. No, because she implied that CFA charter holders always secure better jobs. And third, no, because discussing the CFA program publicly is prohibited. क्या हमने कहीं पे भी पढ़ा है कि discussing it is publicly prohibited? No, it is not prohibited. कहीं पे भी इसने सुपीरियर रिटर्न्स की बात करी? कहीं पे भी सुपीरियर रिटर्न्स की बात करी? बिल्कुल भी नहीं सर, सुपीरियर रिटर्न्स की बात नहीं करी। Therefore, the answer is option A. One of those rare occasions जहाँ पे there is no violation. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो सर। क्वेश्चन 5, डॉक्टर एना कोवैक्स holds both a PhD in economics and a CFA designation. She wonders whether her business card should state PhD CFA और CFA PhD, मतलब दोनों डेजिग्नेशन से पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा वो। What guidance can she apply under the standards? Option is she must list the CFA designation first.
she must list the CFA designation as it is a academic. She must list the PhD first because it is an academic degree. She may list them in any order provided they are accurate and separated by commas. हाँ obviously बात है सर, आप किसी को कंफ्यूज मत करो ना, आप बस बता देना, आप बस फैक्चुअल फैक्ट्स बताओ कि क्या है. आर यू अ PhD इन इकोनॉमिक्स, ठीक है. क्या आपने CFA प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, आपने चारों के 4 लेवल्स दे दिए हैं, आपने PCP स्टेटमेंट साइन कर दिया है, आपने 4000 आवर्स कंप्लीट कर दिया है, आपने एनुअल फीस पे कर दी है, वेल एंड गुड, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. An online blogger writes under the name Finance Genius CFA and publishes research articles without revealing their actual name. Which standard is most clearly violated? सर ये Finance Genius CFA कौन है? क्या इसको CFA की जो ये डेजिग्नेशन है, क्या नाम पे मेरे दिस Finance Genius, is it his name? No, उन्होंने बोला he is a blogger that uses this name. तो सर you cannot use your pen name. आप पेन नेम पे यूज़ नहीं कर सकते हो या सूडो नेम पे यूज़ नहीं कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे यूज़ नहीं कर सकते हो, आप अपने रियल नेम पे यूज़ कर सकते हो. अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल ही आपका रियल नेम है तो आप यूज़ कर सकते हो. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? तो आप ये नहीं बोल सकते कि से फॉर एग्जाम्पल सर आपका कौन है वो, हाँ सर जैसे भुवन बाम है, ही इज़ अ CFA चार्टर होल्डर, एग्जाम्पल ही इज़ अ CFA चार्टर होल्डर, तो वो भुवन बाम कॉमा CFA लिख सकता है, वो BB की वाइन्स कॉमा CFA नहीं लिख सकता. क्यों? क्योंकि सर दिस इज अ सूडो नेम, दिस इज फॉर ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. समझ में आया? या तो कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं. तो ए क्या बोलता है स्टैंडर्ड, उसने क्या वायलेट किया है? स्टैंडर्ड 7B, बिकॉज द CFA डेजिग्नेशन मस्ट बी यूज ओनली विद द चार्टर्स फुल लीगल नेम, चार्टर होल्डर्स फुल लीगल नेम. और स्टैंडर्ड 1D बिकॉज एनोनिमस राइटिंग इज प्रोहिबिटेड और नो वायलेशन सिंस द ब्लॉगर इज प्रमोटिंग द CFA ब्रांड. तो आप प्रमोट करो या ना करो, यू हैव टू बी इन कंप्लायंस. Therefore, you have violated 7B. What have you violated? You have violated 7B. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़ सकते हैं. That is it from my end. Correct. I hope you took out value. I hope sir you took out value. हमने क्या किया? End to end हमने क्लोज किया अपना स्टैंडर्ड 7B. गुड. हमने 40-45 मिनट्स में क्लोज किया. अगर ये एफिशिएंसी रही हम और स्टैंडर्ड्स लेकर आ सकते हैं एंड दिस विल जस्ट एक्ट एज अ बूस्टर फॉर योर प्रिपरेशन, जहाँ पे आप इसको क्लोज कर सको. रीड थ्रू करो, समझो, क्वेश्चंस क्लोज करो, आगे बढ़ो. इस टाइम पे वेरी वेरी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देन यू आर डन विद योर प्रिपरेशन एज वेल. ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. आई होप यू टुक आउट वैल्यू. इफ यू टुक आउट वैल्यूज को एक बारी रिवाइज करना, और भी कोई आपको रिसोर्सेज मिलते हैं आप वहाँ से भी उनको यूज़ करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस एंड प्लीज मूव अहेड एंड लेट मी नो इन केस यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो लेकर आनी है, प्लीज लेट मी नो, कीप मी पोस्टेड. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर दिस वीडियो जिसका एग्जाम आने वाला है अगस्त में या जिसका एग्जाम नवंबर में आने वाला है. इट शुड एक्ट एज अ वेकअप कॉल कि सर अब तो स्टार्ट कर लो. ठीक है, till that please take care and I will see you in the next video. Okay, chalo, please take care, bye bye.